अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। लास्ट टाइम हमने चरिश्मा किताब से किया था या दर्स किताब से किया था? सर दर्स किताब से आज दिनले में है। इसके बाद फिर चालीसवा पे चले जाएंगे। नहीं। हाँ सही, एक मिनट। मैं असल में अब बेबीर की एक इंडिविजुअल क्लास भी पढ़ा रहा हूँ, तो अब ठीक। आप लोगों को थोड़ा सा एक्टिवली इस चीज़ के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी कि हमने जी सर। लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था। ठीक। दिलने में से स्टार्ट कर रहे हैं आज, ऐसे ही है। जी। चलें, दिलने जी। में जो है ना वो ऐसे ही जाने देते हैं। दिलने में के बाद इसको लाइव भेज देंगे। दिलने में के बाद हम वर्कबुक पे जा रहे हैं। जी सर। वर्कबुक पे एक दफ़ा नज़र डाल लें, ताकि ऐसा ना हो कि उसमें उन्हीं कुछ पे। चेंजेस वगैरह हों, तो हमें प्रॉब्लम ना हो ड्यूरिंग लाइव सेशन। जी सर। ये देखें ज़रा, ये वाला कर चुके हैं हम। एक ही आ कर चुके हैं ना, दोनों तरफ से। आज एक ही बे करेंगे। जी सर। और इसके ऊपर हम लाइव जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? सर जा सकते हैं, नीचे है ना बशर एशियन, यही आलती अनातार। इस पे नहीं, जा सकते यहाँ हैं, से हुकुमा है ना। यहाँ से शुरू करके जा सकते हैं। शुरू कर। जी जी सर, कर जा सकते हैं बिल्कुल सर। आ, आपने तैयारी की हुई ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलें, खैर अभी शुरू करते हैं। आज चले जाएंगे लाइव, देखी जाएगी जो होएगी। तो मैं पहले ऑडियो चलाता हूँ। ये 1 मिनट अजान ख़त्म हो ले, अजान चल रही है, तो अजान के बाद मैं इंशाल्लाह वो चलाता हूँ। कौन सा बनता है भला इस वक्त? क्लास से और किताबें इतनी होती हैं कि हर बार चेंज करो। अब बेबीर की बे। दिन में अगर सेम हुआ और यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ तो आंसर तो आ जाएंगे ना सर। पुरानी बुक जी, में थोड़ा चेंज है ना। पुरानी चलिश्मा बुक और न्यू किताब, बुक में थोड़ा। चलिश्मा किताब का पूछ रहा हूँ। दर्स किताब तो अभी हम ये दिन में वगैरह करने के बाद ही उधर जाएंगे। नहीं, अभी दिन में भी मुझे लगता है पुराना और नया चेंज है। नहीं, ठीक, मेरे पास तो सेम है। हाँ, ठीक है सर। एक ही बे है ना, 5 होना चाहिए। फिफ्थ है ये, दिल्ली में फिफ्थ है। Dünyada ve ülkemizde birçok ünlünün geçmişinde bir "senden bir şey olmaz" hikayesi saklı. Senden bir şey olmaz sözü onların hayatlarında aşağılanma anlamından sıyrılarak adeta sihirli bir söze dönüşmüş. Müzikten spora, tiyatrodan इसका याजमा konuşma हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं या नहीं? नहीं नहीं क्या। ठीक है। aktörlüğe, mankenlikten iş dünyasına kadar birçok ünlüye şöhretin yolunu açan bu söz, kötü anlamının yanında yıldızlarını parlatmada da son derece etkili olmuş. Öyle ki bu sözü duymasalar ve hırs yapmasalar belki de bugün onları tanımıyorduk. Türk pop müziğinin minik serçesi Sezen Aksu bugün ülkemizin en meşhur şarkıcılarından birisi. Peki 1975 yılındaki Haydi Şansım adlı 45'liği kaç tane satmış? Sıkı durun. Sadece 50 tane. Zaten yakın çevresi albümü almış. Aksu okulunu bırakıp İzmir'den İstanbul'a gelmiş. Birçok ünlü sanatçı gibi Unkapanı'nda şirket şirket dolaşmış. Ancak bütün kapılar senden şarkıcı olmaz denilip yüzüne kapanmış. Dünyanın en ünlü faresinin yaratıcısı Walt Disney bile bu sözü duymuş. Walt Disney, Mickey fare kahramanını çizip üne kavuşmadan önce
5 işten ret cevabı almış ve Amerika'da bir gazetenin editörü onun resim kabiliyeti yok diye eleştirmiş. Disneyland'ı kurmadan önce de birkaç defa iflas etmiş ve sonunda bütün dünyaya kendini kabul ettirmiş. Otomotiv sektörünün kurucusu Henry Ford, 1903 yılında bankaya kredi talebinde bulunmuş. Ancak ret cevabı almış. Müdüre nasıl böyle büyük bir projeyi geri çevirebilirsiniz deyince banka müdürü otomobil ancak geçici bir moda olabilir cevabını vermiş. Ford ise bunun üzerine bir gün yollarda at arabalarının yerini otomobil alacak demiş. Ford hedefine ulaşmak için 5 kez iflas etmiş ve sayısız engellerle de karşılaşmış. सर जवाब बता दूं? बाकी लोगों से पूछ लें। सर एक दफा और चलाएं। Dünyada ve ülkemizde birçok ünlünün geçmişinde bir senden bir şey olmaz hikayesi saklı. Senden bir şey olmaz sözü onların hayatlarında aşağılanma anlamından sıyrılarak adeta sihirli bir söze dönüşmüş. Müzikten spora, tiyatrodan aktörlüğe, mankenlikten iş dünyasına kadar birçok ünlüye şöhretin yolunu açan bu söz, kötü anlamının yanında yıldızlarını parlatmada da son derece etkili olmuş. Öyle ki bu sözü duymasalar ve hırs yapmasalar belki de bugün onları tanımıyorduk. Türk pop müziğinin minik serçesi Sezen Aksu bugün ülkemizin en meşhur şarkıcılarından birisi. Peki 1975 yılındaki Haydi Şansım adlı 45'liği kaç tane satmış? Sıkı durun. Sadece 50 tane. Zaten yakın çevresi albümü almış. Aksu okulunu bırakıp İzmir'den İstanbul'a gelmiş. Birçok ünlü sanatçı gibi Unkapanı'nda şirket şirket dolaşmış. Ancak bütün kapılar senden şarkıcı olmaz denilip yüzüne kapanmış. Dünyanın en ünlü faresinin yaratıcısı Walt Disney bile bu sözü duymuş. Walt Disney, Mickey fare kahramanını çizip üne kavuşmadan önce 5 işten ret cevabı almış ve Amerika'da bir gazetenin editörü onun resim kabiliyeti yok diye eleştirmiş. Disneyland'ı kurmadan önce de birkaç defa iflas etmiş ve sonunda bütün dünyaya kendini kabul ettirmiş. Otomotiv sektörünün kurucusu Henry Ford, 1903 yılında bankaya kredi talebinde bulunmuş. Ancak ret cevabı almış. Müdüre nasıl böyle büyük bir projeyi geri çevirebilirsiniz deyince banka müdürü otomobil ancak geçici bir moda olabilir cevabını vermiş. Ford ise bunun üzerine bir gün yollarda at arabalarının yerini otomobil alacak demiş. Ford hedefine ulaşmak için 5 kez iflas etmiş ve sayısız engellerle de karşılaşmış. जी आप बताएं। सर पहले का है dünyada ve ülkemizde. 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 जी दुनियादा वे ülkemizde ठीक है आगे। Second में sihirli bir sözü. इसके बाद है yüzüne kapatmış. तीसरा. चौथा है इफलास etmiş. जी नेक्स्ट। चौथा जो है रेड जवाब almış है और अच्छा पांचवा है इफलास. सेकंड में आपने लिखा है बशारेलो ओल्मा मस ओल्मा लारना सालामुश, ऐसे ही है। जी सर. इस जगह पे आपने लिखा है यूजुने कफानमुश, ऐसे ही है। कपान. जी सर. यहाँ पे इसके बाद आपने है रेड जवाब. रे, रेड रेड जवाब जवाब
cevabı almış और यहाँ पे और çok çalışmış. फ्लैश etmez. फ्लैश etmez या क्या है? çok çalışmış. इफ्लाश चुप चल। अच्छा सर, इफ्लाश हमारे पास एटमिश पुरानी फिफ्थ में आएगा। पुरानी पुरानी किताब में है, पुरानी किताब में फ्लैश है। यहाँ पे çok çalışmış है। चुप चलो। अच्छा जी, दोरू यांलिश में से फर्स्ट सिर्फ दोरू है। थर्ड यांलिश है, बाकी तीनों दोरू हैं। दोनों में ठीक है जी, जाएं लाइव 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 लूव खेलें। बेबीर क्या टॉपिक बनता है हमारा? बशारन ओइकुलरी। कोई कलर। चलो जी, हम जाते हैं लाइव। हालांकि मेरा पेज मोनेटाइज नहीं हुआ, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं पता नहीं क्या कुछ कर रहा हूँ। आजकल काफी लोग, अभी एक बंदे की कॉल आई हुई थी। आप लोगों में से कोई इसको ट्रांसलेट कर सकता है? मेरा गला थोड़ा अपसेट है, अगर कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो जिस तरह का है लोग ऐसे ही बर्दाश्त करें। फिर क्या कहते हैं? हयातिनदकी नहीं अभी ले नहीं, ओनेमली। अभी नहीं, अभी अच्छा नहीं, अच्छा। सिर्फ एक आध मिनट दें मुझे, मैं सिर्फ ये टाइटल लिख के भेज दूं। आज लोग कम क्यों हैं क्लास में? मिस साइमा के साथ किसी का रब्ता है? उन्होंने जी मुझे, सर है सर। क्लास में क्यों नहीं आती? सर वो रिकॉर्डिंग देख लेती है। ये क्या बात है? क्लास की फीस क्यों दी है अगर वो शायद रिकॉर्डिंग? सुकून से पढ़ती होंगी आराम से अकेले। वो नहीं, देख इधर के भी तो नोट्स बना आया के कर, पढ़ अच्छा पढ़ रही होंगी। इधर भी तो मैं आना चाहिए। कहूंगी उसको। तो पहले तो वो रेगुलर क्लास अटेंड करती थी सर। पता नहीं, नाराज हो गई मुझे लगता है। वो थोड़े से अजीब मिजाज के मालिक हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। रिकॉर्डिंग उन्होंने देखनी है, बस ये ध्यान में रखिएगा। सोच समझ के। मैं तो बच गई। हंसेंगी वो सुन के बाद में ना। और अगली क्लास, मैं और नासिर भाई उसको कन्विंस करते रहते हैं कि आ जाओ आ जाओ। शायद वो थोड़ा बिजी भी है, मेहमान बहुत ज्यादा आ रहे हैं इनके घर में। वो आजकल थोड़ा सा मसरूफ भी ना, उनकी बहन की और वालिद जी की, जी। वालिदा की उनकी बरसी वगैरह का सिलसिला भी है। हाँ लेकिन उससे पहले भी नहीं कुछ आ ना रही कुछ। थी वैसे भी देखा सर जाए तो। उसके पहले उनके घर पे मेहमान बहुत ठहरे हुए थे, उस वक्त भी यही उनकी मसला कोई था। मेरे साथ नाराजगी चल रही है मुझे लगता है। आप बताएं, कोई ऐसा सर मामला आप तो नहीं? जी। आपकी नाराजगी का तो नहीं पता, लेकिन मेहमानों का पता था कि वो आए हुए थे घर पे। चलें, खैर हो। नूरजारा, आपने क्या मैसेज करके डिलीट किया हुआ है, पहले ये बताएं जरा। सर वो मैं V1 की क्लास का पासवर्ड पूछ रही थी। पासवर्ड तो नहीं चाहिए होता? सर मैं टैप वगैरह करती हूँ तो उसके ऊपर मेरी लिंक नहीं थी, मुझे पता नहीं है क्योंकि चलो, A1 और A2 की मेरे पास पासवर्ड है जब भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलें जी, हम जा चुके हैं लाइव, शुरू करते हैं। याजमा है हयातनज़दा की एन उनेमली बशारनज नेदिर। आपकी जिंदगी की सबसे अहम कामयाबी क्या है? अशादा की नोतलादान या रारला नरक या जलम। नीचे दिए गए जो नोट्स हैं उनसे फ़ायदा उठाते हुए लिखते हैं। ने ज़मान ओल्दू, ये कामयाबी जो सबसे अहम कामयाबी है वो कब हुई? बशारमा किचिन नेलर याप्तनस, आपने कामयाब होने के लिए क्या कुछ किया? सोनुशलार ने ओल्दू, उसके नताइज क्या हुए? क्या क्या हुए के मानी में, क्या बने के मानी में भी कह सकते हैं, लेकिन लफ्सी माना जो ओल्दू का है वो ये है कि क्या हुए। हयातनज़दा की एतकिसी नस्ल, आपकी ज़िंदगी के अंदर की उसकी
उसका इफेक्ट कैसा है, उसका असर कैसा है। अच्छा जी, उसके बाद है konuşma. Aşağıdaki konular hakkında arkadaşlarımıza sorular sorup konuşalım. नीचे दिए गए मौजूआत के हवाले से हमारे दोस्तों से सवाल पूछ के बात करते हैं। यारिश कज़ानमा, कंपटीशन जीतना। bir sınavı geçme, एक इम्तिहान से कामयाब होना। bir ödül kazanma, एक प्राइज जीतना। एहलियत आलमा, ड्राइविंग लाइसेंस लेना। इशे गिर में जॉब में एंटर होना। इल्क खेज पारा कजानमा, पहली दफ़ा पैसे कमाना। ये वाला जो है ना यूनिवर्सिटी वाली जो जॉब थी मेरी, बल्कि इवन बैचलर के बाद जो मैंने बीएससी सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने जब पहली जॉब की थी, तो बड़ी मतलब वो एक यादगार मोमेंट्स होते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने कोई कॉपियाँ की सीवी की अपनी, और मेरा इंटरेस्ट भी टीचिंग की तरफ था। तो मैंने जो है ना वो जितने भी उधर लाहौर में कॉलेजेस थे ना, सब में अपना सीवी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और मज़े की बात ये है, मैं ट्राउज़र शर्ट पहना हुआ अपनी मदर के साथ मैं कहीं उनको लेके जा रहा था, तो रास्ते में उस कॉलेज का मुझे आज तक पता नहीं था। तो ऐसे ही हम उस रास्ते से गुजरे, तो मैंने कहा इस कॉलेज में भी ना सीवी पकड़ा देता हूँ। और मैंने सीवी पकड़ाया अभी, तो हम अभी निकलने लगे थे कि सिक्योरिटी गार्ड ने कहा जी प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। उसी दिन ही जनाब आपकी जॉब डन हो गई। इसी तरह यूनिवर्सिटी लेवल पे जॉब इस तरह से हुई कि मैं मतलब काफ़ी देर से अप्लाई किया हुआ था। तो एक दिन जो है ना वो मैं भाई ने मुझे भेजा रियाल चेंज करवाने के लिए, और करेंसी एक्सचेंजर के पास बैठा हुआ था कि मुझे यूनिवर्सिटी से कॉल आ गई कि जी हाफिज़ कासिम अली बोल रहे हैं जी। मैंने कहा जी आपका फ़लाँ दिन इंटरव्यू है लेक्चर की जॉब के लिए। मैंने कहा जी ज़बरदस्त। और बिलीव कुछ ऐसा था, क्योंकि वहाँ से पढ़े हुए थे, तो ऐसा फील होता था कि मतलब हुआ उस वक़्त कि अब इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया तो पक्की जॉब हो जानी। हालांकि ऐसा नहीं था, बस उस वक़्त दिमाग में ऐसा बैठा कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दिया, क्वेश्चंस के आंसर दिए, सिलेक्शन होगी। उस वक़्त तक कोई सही एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि हम पायनियर्स थे। उसके बाद मेरे बाद ऐसे लोग भी थे जिनका नहीं हुआ, इंटरव्यू के लिए उन्होंने बुलाया नहीं रखा उन्होंने। तो बहरहाल ये दोनों मोमेंट्स जो हैं ख़ास तौर पे ये बड़े इंटरेस्टिंग थे मेरे लिए और यादगार। इस तरह के आप लोगों के भी एक्सपीरियंसेस होंगे ज़िंदगी के, उस पे नहीं जाते क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अच्छा जी, अब सवाल पूछ रहे हैं इस तरह से, उन्होंने कहा कि इन मौज़ूआत के हवाले से सवाल पूछना है। तो पहला सवाल किया है, daha önce hiç yarışmaya katıldın mı? इससे पहले तुमने कभी कंपटीशन में हिस्सा लिया है? Evet katıldım, हाँ मैंने हिस्सा लिया है, शमूलियत इख्तियार की है। hatta bir bilgisayar kazandım, hatta मैंने एक कंप्यूटर जीता उसमें से। खजानमक जो है कमाना, जीतना, पास करना के माने में मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ मीनिंग में इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, तो यहाँ तक हमारा हो गया इकिंजी यूनिटे का बे बोलूँ कंप्लीट। हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि चूँकि मेरी ख्वाहिश ये है कि हम रमज़ान तक बे बीर और बे इक्की के कम से कम 2-2 चैप्टर कंप्लीट कर लें। तो अगर इसका पहले कंप्लीट हो जाता है तो उस सूरत में हम जो बे इक्की है उसके जो कुछ चीज़ें रह जाएं उनको कोशिश करके, यानी दोनों दिन बे इक्की की क्लास रख के हम उसको कर लें। क्या जी सर, ऐसा कर ठीक सकते रहेगा? हैं। जी सर, कर लेते हैं। बाकी लोग क्या कहते हैं? दोनों दिन बे इक्की की क्लास करके जब इसका ख़त्म हो जाए 2 चैप्टर, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। जी जी ठीक है। सर। कोशिश करेंगे कि इसके भी 2 यूनिट हो जाएं रमज़ान के बाद, जब हम फिर स्टार्ट करें तो फिर थर्ड दोनों लेवल्स का थर्ड यूनिट जो है वो चल रहा हो। सर इसमें 10 किताब से हमने बे वॉल्यूम में वो इश वाला दिल भी किसी कर ली है। हाँ जी, कर लिया। लास्ट क्लास, लास्ट टाइम आप नहीं थे क्या?
लास्ट टाइम तुमने रीडिंग की थी मेरे ख्याल से ज्यादा से। नहीं, फिर आपको नहीं याद, हमने की थी ये इश वाली ग्रामर कर चुके हैं हम। मुझे तो याद, बिल्कुल भी याद नहीं। मोदी साहब बताएं। सर मैं वीडियो चेक करके बता सकती हूँ, अभी तो मुझे भी याद नहीं आ नहीं रहा। सर, कर तो लिया कर होगा, चुके कर हैं लिया हम। है शायद। कर कर चुके हैं, लिया है। मुझे याद है, मुझे याद है कर लिया। हमने की हुई है। अगर आपका उधर फेसबुक पे चक्कर लगे तो ये हमारी वीडियो चली गई है लाइव, इसको शेयर कर दीजिएगा। जी जी सर, ठीक। चलें जी, अब आ सर जाते मैं हैं बशार उइकुलेरी, कामयाबी की कहानियां आप कह सकते हैं। hazırlık çalışması aşağıdaki atasözlerini anlamlarıyla eşleştirelim। यानी जो अकवाले ज़री इसको कह सकते हैं, हमारे लिहाज से ये अकवाले ज़री हैं, उनके मानी के साथ, नीचे जो उनके मानी दिए हुए यहाँ पे उनके मानी हैं और ऊपर अतासोज दिए हुए हैं, तो उनको हमने आपस में मिलाना है। अकांसु योसुन तुथमास, ठीक है जी। योसुन किसको कहते हैं? सी वीड्स को। जो बहने वाला पानी है उसको सी वीड्स रोक नहीं सकती, वो बहता रहेगा। तो इसको हम किसके साथ मिलाएंगे? बे के साथ। Hareketlilik ve çalışkanlık insanı canlı ve üretken yapar। हरकत और मेहनत इंसान को जानदार और प्रोडक्टिव बनाता है। Böylece o insan hem kendisine hem de başkalarına yararlı olur। इस तरह से वो बंदा अपने लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी फायदेमंद होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ज़हमत ओल मदान रहमत ओल माज, यानी तकलीफ किए बगैर रहमत नहीं है। रहमत नहीं होती। ठीक है जी। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, हमारे हमारे लिहाज से यह हीले में वसीला है, ऐसे ही है, सर ऐसा ही हीले है। में वसीला, हीला करोगे तो वसीला बनेगा। यहाँ पे हमने बे लगाया, यहाँ पे क्या लगाएंगे? जे। जे लगाएंगे। जे में क्या कहते हैं? सिकंत चेक मैदान, यानी कोई टेंशन लिए बगैर, परेशानी लिए बगैर। गुचलुक लेरे गोश गैर मैदान, ठीक है जी। डिफिकल्टीज को कन्फ्रंट किए बगैर। योरुलुप एमेक वैर मैदान, थक के अपनी जो एनर्जी है वो हर्ज किए बगैर, यानी टेंशन थकन लिए बगैर। ओलुमलू वे गुजैल भी सुनुच एल्दे एथमेक मुमकुन दिल दी, पॉजिटिव और एक अच्छा खूबसूरत उम्दा नतीजा हासिल करना मुमकिन नहीं है। तो जहमत ओल मदान रहमत ओल मज, ठीक है। एमेक ओल मदान यमेक ओल मजान, यानी रोटी के बगैर खाना नहीं। किसके रोटी बगैर? के बगैर खाना नहीं। रोटी के बगैर कोशिश, कोशिश कर। अच्छा ये मुहावरा लेबर, है पूरा। लेबर आप कह सकते हैं। लेबर को किस सेंस में आप लेंगे? मेहनत, मेहनत, लेबर, लेबर हर्ज किए बगैर यहाँ पे भी है। एमेक वैर जे। मैदान, यानी आप उस पे अपना टाइम एनर्जी स्पेंड किए बगैर कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह आप अपना टाइम एनर्जी स्पेंड किए बगैर आप का खाना नहीं बनता या आप खाना नहीं हासिल कर सकते। इसको क्या जे। लगाएंगे? जे। चे लगाएंगे। चौक चे क्या चलिश्मा कहता है? चौक चलिश्मदान हिच भी शई खजानब मैदाना और एते मेयिज, यानी ज्यादा मेहनत किए बगैर कोई भी चीज हम कमा के सामने नहीं प्रोड्यूस कर सकते, सामने नहीं ला सकते। यिप इचमैक, खा पी के हारजमक वे किस्सा जस यशया बिलमैक इचिन, खर्च करने के लिए और मुख्तसर तौर पर जिंदा रहने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदा रहने के लिए। आलन थेरी दोकेरिक खजान मामस शात्र का क्या मतलब है? पेशानी पे पसीना डालते हुए या उस निकालते हुए हमारा कमाना शर्त है। ये हो जाएगा चे। इशलेयन देमिर फास तुतमास,
ठीक है जी, ये हम अब डेफिनेटली आ ही होगा। जो काम करने वाला आयरन है उसको जंग नहीं लगता। ठीक है जी। तो चलिश्मक इंसान दा की तंबेली, मेहनत या काम करना इंसान के अंदर की सुस्ती, इस्तेक्सिजली ख्वाहिश का ना होना, यो कदर उसको ख़त्म करता है। इंसान जानले वे रिमली या पार इंसान को जानदार और एफिशिएंट बनाता है। मद्दी योंदेंदे कजांच सालार, मद्दी तौर पर यानी मटेरियलिस्टिक आप कह सकते हैं, उसमें भी, उस पहलू में भी या उस तरफ से भी आपको कमाई मुहैया करता है, फायदा लुलुर। ठीक है जी। उसके बाद है इकिंजी बीस शरकतिन यूनेटिजिसिनिस, आप एक कंपनी के मैनेजर हैं। बीर पर्सनल एहतियाजन वार, एक पर्सनल की, एक काम करने वाले की आपको जरूरत है। इकी किशी बू इश इचिन बाशवुरियोर, दो लोग इस काम के लिए अप्लाई करते हैं। बीरी चौक यकन बीर आर्कदाशनस, एक आपका बहुत करीबी दोस्त है, वे चलिश्कान और मेहनती है। दियरी बू इश्ते उस्मान अमा तनमी और सुनुस, दूसरा जो है वो इस काम में एक्सपर्ट है लेकिन आप उसको जानते नहीं है। हर इकी किसी दे ग्वेनिलिर, दोनों ही काबिल भरोसा हैं। हंगी से ने तरजीह है दर्शनिस, आप किसको तरजीह देंगे, नेदैन क्यों? जी बताइए। बताइए। तब पहले वाले को सर, जिसको हम जानते भी हैं और वो मेहनती भी है। किस उसकी वजह यही है कि वो, उसको आप जानते हैं और वो मेहनती भी है? जी जी सर, लाजमी बात है। नहीं, लेकिन दूसरी तरफ आपके पास एक्सपर्ट बंदा है और काबिल भरोसा भी है। सर जानने दोनों की वाला सीवी ना जरूरी देख है लें, कि आपको एक्सपर्ट जरूरी है? दोनों के एक्सपेरिमेंट देख लें, उनकी सीवी देख लें, फिर सेलेक्ट कर लें। नहीं, वैसे मैं आपको बताऊं, वो यही बताना चाह रहे हैं कि जो आपका करीबी है ना, वो वो आपका करीबी है और बहुत मेहनती है, काम को नहीं जानता वो। ठीक है, दूसरा बंदा काम को जानता है, ठीक है, लेकिन आप उसको नहीं जानते, पर्सनली नहीं जानते। दोनों काबिल भरोसा हैं, आप किसको तरजीह देंगे? मेरे लिए दूसरा सही है फिर। जी कमर साहब आप बताइए। सर पहला वाला काम तो जानता है ना, सिर्फ मेहनती एक्सपर्ट नहीं, नहीं है ना। काम जानता है ये बात कोई नहीं लिखी हुई। अगर वो काम नहीं जानता तो फिर दूसरा ही ज्यादा हाँ बेहतर है। जी, उन्होंने उस चीज का जिक्र नहीं किया कि वो काम जानता है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि एक बंदा जो है वो आपका जानने वाला है और मेहनती है, काम का जिक्र नहीं किया। लेकिन अगली पे उन्होंने कहा है कि दूसरा बंदा जो है वो इस काम में एक्सपर्ट है, ठीक है, लेकिन आप उसको एज ए पर्सन, यानी वो आपका जानने वाला नहीं है, ना दोस्त है ना रिश्तेदार है, ठीक है, लेकिन काम करने के लिए या मतलब वैसे करेक्टर वाइज दोनों काबिल भरोसा हैं। तो फिर आप किसको तरजीह देंगे? मेरी नज़र में मैं भी जो है ना वो सेकंड ऑप्शन के साथ जाऊंगा कि मैं एक्सपर्ट लूंगा। ठीक है, अगर एक चीज वैसे एक लिहाज से चलिश्कान आपके काम आ सकता है, एक तरह से आप उसको डिफेंड कर सकते हैं चलिश्कान वाली पॉइंट को, कि चलिश्कान आप बंदा उठाएं, उसको आप काम सिखाएं, ठीक है, और उसको लॉन्ग टर्म चलाएं। जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो नॉर्मली इसी चीज में रह जाते हैं कि हम एक्सपर्ट हैं, हम कर लेंगे। वो कछुए और खरगोश वाला जो है ना वो सिलसिला पॉसिबल होता है। तो उस कंडीशन के अंदर अगर इस तरह का है आपके पास मार्जिन के, आप जो चलिश्कान है, मेहनती है, उसको आप काम सिखा दें तो, और उसको लॉन्ग टर्म चलाएं, वो काम में करेगा। जो उस्मान है वो अपनी इस चीज में अकड़ में रह के हो सकता है काम ही ना करे, या आप उसकी डिमांड्स ना पूरी कर सकें, उसको उतना पे ना कर सकें, उतनी उसको सर्विसेज फैसिलिटीज ना प्रोवाइड कर सकें।
तो उस सूरत में आप उसके साथ जा सकते हैं। बशारे इचिन आलत अनहतार, कौन रीड करेगा इसको? सर मैं रीड कर लूंगा, बट कोई ट्रांसलेट कर दे। जरूर करेंगे हम ट्रांसलेट। कौन करेगा जी ट्रांसलेट? जो ट्रांसलेट करेंगे वो रीड भी कर लेंगे सर। नहीं, अब्दुल्ला जो है ना सर कभी अब्दुल्ला को कभार आता मौका है। मिलना चाहिए। हाँ, वही हम मैं लोग तो कह रहा हूँ पढ़ते कि रहते हैं। अब्दुल्ला अब्दुल्ला कभी अब्दुल्ला को अब्दुल्ला मौका की मिलना टर्किश इतनी अच्छी है, वो ट्रांसलेशन क्यों नहीं करते हैं फिर? मुझे नहीं, वो उर्दू असल नहीं में ना आती कभी। ट्रांसलेशन छोटी के लिए उम्र से हम इधर कर आ देंगे। गया, उर्दू के ऊपर उसकी नहीं है ज्यादा एक्सपर्टी, ये वजह है। इंग्लिश में बोल दे सर, जी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले वो। अब्दुल्ला, इंग्लिश में कर सकते हो? नहीं सर, मुझे ट्रांसलेट इतना अच्छा नहीं आता। जब भी कोशिश करो, जहाँ पे मुश्किल होगी ना या गड़बड़ होगी हम उसको ठीक करेंगे। सर पूरे में ही गड़बड़ होगी, फिर तो कोई और ही ट्रांसलेट कर ले, मुझसे नहीं हो पाएगा। चलें, करें आप। ओके सर, कोशिश कर लेता हूँ। बशर için altı anahtar, सक्सेस होने के लिए 6 कीज। सक्सेसफुल होने Vahap Küçük bin Successful होने के लिए 6 कीज। Vahap Küçük 1961 yılında Malatya'da doğdu। Vahap छोटे 1961 ईयर में मलाथिया में पैदा हुआ। İlkokul ve lisede Malatya'da okuduktan sonra askere gitti। İlkokul को सर का क्या बोलते हैं? हाई स्कूल, स्कूल, प्राइमरी सेकेंडरी एंड हाई प्राइमरी। स्कूल नहीं नहीं, मलाथिया में पढ़ने के बाद प्राइमरी इल्कोकुल जो होता है वो प्राइमरी होता है, ठीक है। ओरता कुल जो होता है वो मिडिल स्कूल होता है, और इसे हाई स्कूल। हाई स्कूल, हम्म। प्राइमरी एंड हाई स्कूल मलाथिया में पढ़ने के बाद वो आस्केरे सोल्जरिंग में गया। आर्मी में गए थे। आर्मी ट्रेनिंग के लिए। Army training के लिए गया। Askerden döndükten sonra Malatya'da çeşitli army से वापस आने के बाद उसने मलाथिया में सर çeşitli işler yaptı, yani डिफरेंट वर्क्स किए। different मुख्तलिफ तरह works के काम किए। किए। Bir süre kardeşi Mustafa Küçük birlikte İstanbul'a gelip Zeytinburnu'da bir tekstil atölyesine işletmeye başladı। थोड़े देर के बाद अपने छोटे भाई के साथ इस्तांबुल जैतूनबुर्नो में आकर टेक्सटाइल का काम şuru कर दिया। Küçük kardeşleri ilk önce çeşitli firmalar fason üretim yaptılar। छोटे भाई, जो उसके छोटे भाई थे, उसने पहली बार टेक्सटाइल की वर्कशॉप करनी शुरू कर दी। वर्कशॉप का बिजनेस आप कह सकते हैं, वर्कशॉप बिजनेस शुरू कर दी। डिफरेंट फर्म्स। जी, आगे। 1999 yılında LC Vakiki satın alıp bir Türk markası yaptı। 1997 ईयर में LCYK को परचेज करके एक टर्किश ब्रांड बना दिया। Vahap Küçük'e göre Başar'ın 6 anahtarı var। Vahap छोटे से उसके पास 6 कीज हैं के लिहाज से bunlar। कुछ गोरे कामयाबी की 6 कीज हैं। देयर आर 6 कीज फॉर सक्सेस फॉर Vahap bunlar बाय उसके लिहाज से, यानी उस अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 6 कीज फॉर सक्सेस। bunlar değişik olmak, जो चेंज खुला हो, odaklanmak, ahlaki değerle bağlı olmak। देशी में अचक olmak का क्या मतलब है? चेंजेस के देश में लिए, अचूक olmak, तब्दील करने के लिए खुले खुला रहें। होना चाहिए, ओपन होना, खुला होना। वेलकमिंग होना, कि अगर आपको किसी जगह पे कुछ चेंज करना पड़े तो ये ना हो आप कहें कि नहीं जो मैंने कर दिया बस वो ठीक है, वो फाइनल है। हमेशा अगर आप रिसेंटली जो एग्जांपल दी जा सकती है वो नोकिया की दी जा सकती है कि नोकिया के अंदर उन्होंने रिसर्च वगैरह के ऊपर, चेंजेस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, तो उसको बहुत सारी कंपनीज ने ओवरकम कर लिया। तो अगर आप ऐसे नहीं हैं तो उस सूरत में आप कामयाब नहीं हो सकते कि आप
तब्दीलियों के ऊपर अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखें। तो तब्दीलियों के लिए तैयार रहना चाहिए। तब्दीलियों के लिए तैयार रहने के सेंस में आप इसको कह सकते हैं। odaklanmak क्या कहते हैं, ओदाकलानमक Focus. कंसंट्रेट करना, फोकस करना। fokus करना। ahlakı değerli bağlı kalmak, जो अखलाक की वैल्यूज हैं, कदर इकदार हैं, उनके साथ जुड़े रहना। sabırlı olmak, sabır के साथ हालांकि रहना, क्या मैंने सर? अखलाकी इखलाक, अच्छा, दियार इखलाक। वैल्यू इकदार, इखलाकी इकदार के साथ जुड़े रहना। sabırlı olmak, sabır के साथ रहना, विजन व मिशन सबर साहिब, वाला होना। सबर के सबर साथ वाला, रहना भी कह सकते हैं, लेकिन सबर वाला ओलमक होना। यानी बामुहावरा, विजन है ना सर, विजन व बामुहावरा भी आपका ठीक है, बामुहावरा आपका वाला भी ठीक है, लेकिन लफ्जी माना लेके चलेंगे तो सबर ओलमक का मतलब है सबर वाला होना। ओके। विजन व मिशन ne demek? विजन और मिशन ये इंग्लिश से हैं। हाँ, मिशन, हाँ, मिशन विजन छोटे होते हैं एंड मिशन। और विजन बड़े होते हैं, यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आप कह सकते हैं। यानी कि आपके सामने अपना मकसद और विजन जो है वो उसके आपको मालिक होना चाहिए। हाँ जी, आपके पास अपना विजन और मिशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग आप लोगों पे डिपेंडेंट हों कि लोग आपको रास्ता दिखाएं। आपके पास विजन और मिशन होना चाहिए। उस विजन और मिशन को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों की साथ हेल्प ले सकते हैं। यानी हर काम आपने खुद तो नहीं करना होता ना, आपको फिर टीम बनानी, बड़ा कोई टारगेट अचीव करना है तो वो टीम वर्क होता है। कभी भी एक इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास टीम ना हो। तो जैसे अब अपनी एग्जाम अभी ना 3 में ना 13 में, लेकिन बहरहाल एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जब से ये मैंने काम शुरू किया ना, लोगों को साथ कनेक्ट किया है, फ्री क्लासेस उनको दे रहा हूँ और उनसे जो है ना वो थोड़ा सा सोशल मीडिया से रिलेटेड काम लेता हूँ। तब से फेसबुक माशाल्लाह से पेज काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी एक्टिविटी है उसमें। और अभी जो लोग 3-4 देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट हम करेंगे कि वो हमारी वीडियो शेयर कर दें। सर मैंने तो कर दिया। 4 लोग अभी देख रहे हैं, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट कर दिया कि वो भी काइंडली वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। जी, हम आगे पढ़ रहे हैं। Parayı ve insanı iyi yönetmek, पैसे एंड इंसान को iyi yönetmek, अच्छे से अच्छा, मैनेज करना, अच्छे से अच्छे से मैनेज मैनेज करना। करना। बाज़ दोनों औक़ात चीज, लोग दोनों में से किसी एक को मिसमैनेज कर जाते हैं, लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते या उनको अच्छा यूटिलाइज नहीं करते। इसी तरह पैसे को अच्छे तरीके से अच्छी जगह पे, जिस जगह पे ज़रूरत हो उस जगह पे इस्तेमाल करने के बजाय गलत जगह इस्तेमाल कर देते हैं। तो उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना जो है ना, कामयाब होने के लिए ये भी ज़रूरी है। मतलब रिसेंटली किसी की बात सुनी कि पैसा लगा के तो हर बंदा कामयाब हो जाता है। असल ये चीज़ है कि आप पैसा भी ना लगाएं और कामयाब भी हों। क्या ख्याल है, ये कैसी बात है? कितना एग्री करते हैं आप इसके साथ? मेहनत ज्यादा होगी ना उसमें फिर, जहाँ पैसा नहीं लेकिन सर लगाएंगे वहाँ कोई भी काम मेहनत करने ज्यादा के लिए होगी। उसमें इन्वेस्ट तो करना पड़ता है। नहीं, दिमाग की मेंटेन बात है। करने के लिए तो सर ठीक कह रहे हैं, अगर आपका इंट मतलब कि एक नाम बन जाए ना तो हाँ फिर जी, इधर है पैसे अभी हम इधर तक पढ़ा, लगाए iyi बगैर yönetmek, आपका अच्छा इधर हो तक, जाता है। इधर ही बैठ। इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करना पैसे को। ये नहीं है कि आप बिल्कुल खर्च ना करें, इंटेलिजेंटली करें। ऐसे नहीं है कि बस अंधाधुंध खर्च करते जाएं और आपको आगे से उसकी कोई आउटपुट नजर ही ना आ रही हो। हम्म। ये चीज है। सर वैसे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सेकंड बात पैसे जो है लगाए ना ना। आपकी, जी, जो आपकी सेकंड बात है ना, मैं उससे एग्री करती हूँ, क्योंकि समटाइम्स पैसों के बगैर भी आपके जो बिजनेस चलता है ना, वो आपके अपने उसकी वजह से चलता है कि आप कितनी एफर्ट डालते हो। एग्जैक्टली मैं इस चीज के साथ बड़ा मतलब
एग्री इस वजह से करूंगा कि मैं खुद इसी प्रोसेस से गुजरा हूँ। हम्म, ठीक है, तो पैसे नहीं लगाए ना, डेढ़ साल तो लोगों से लिए भी नहीं है। जी हाँ, ठीक है, या तो इसके थ्रू कामयाब होना एक लॉन्ग टर्म होता है। पैसे के एग्जैक्टली, साथ आप पैसे के साथ शॉर्ट टर्म में गेन्स तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन या लॉन्ग टर्म में जो है ना, वो अगर आप बाकी चीजें यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे, ये चीजें नहीं होंगी हमारे पास तो हम कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल, जी सर मेरा नजरिया तो ये है कि कारोबार में दो ही आदमी कामयाब होते हैं, जी, या जो 1 रुपए से कारोबार करता है, जो करोड़ों से करता है। बस आप इसको थोड़ा सा एलेबरेट भी कर दें, क्योंकि मिसाल के ये तौर पर सर, बहुत जो ज्यादा मुख्तसर पुरअसर हो गया। एक सब्जी वाला जो है वो 200 रुपए की सब्जी लाता है और 2000 की बेचता है सर। जी और जो अगर छोटा कारोबार करने वाला तो बेचारा सारी जमा पूंजी लगा देता है, उसके बाद उस काम में उसके पास पैसे ही नहीं होते लगाने के लिए। क्योंकि जितना पैसा आप लगाएंगे उतना पैसा आपके पास पीछे हाथ में भी होना चाहिए, ताकि आप उसको पैसे को फ्लो करा सके, वो सर्कुलेट करा सके पैसा। सर्कुलेट करा सकें, ये वाली बात भी आपकी ठीक है। और इसके साथ ये वाली चीज़ भी हो सकती है कि आप मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें, ताकि अगर आपको एक बिजनेस में लॉस हो रहा है तो दूसरी तरफ से आपको कंपनसेट हो जाए। नहीं सर, ये तो मतलब ये तो एक इंडिविजुअल की बात है ना, उसके पास इतना पैसा है कि सिर्फ वो स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है कि वो एक ही कारोबार करेगा ना स्टार्ट में, तो शुरू में तो बाद में दूसरे का। मैं जैसे मैं जानता हूँ एक बच्चे को, जो हाँ, उसने एक एक काम शुरू किया, उसके बाद उसके आज 5-6 काम चल रहे हैं। तो वो हाँ जी, पहले स्टार्टिंग के स्टार्ट लिए तो स्टार्टिंग के लिए जाहिर है वो अगर उसके पास फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, मतलब कि अगर आपके पास पैसे हैं और आपके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है या नहीं भी है फॉर एग्जांपल, तो आप चीज़ें रखने की बजाय ना, चीज़ें नहीं खरीदने, जैसे गाड़ियां खरीद ली, इसी तरह कोई ऐसी चीज़ जो आपके इस्तेमाल में सिर्फ आएगी, यानी उससे आप बिजनेस नहीं कर रहे, तो वो आप गलत कर रहे हैं। मैं सर एक क्योंकि फैमिली को जानता हूँ जिसमें उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको और पैसों की जरूरत पड़ेगी। उसकी लाजमी बात बजाय है। आप उसमें से पैसे निकाल के बिजनेस में डालें, मतलब सेव करके बिजनेस बड़ा करें, उसके बाद वो सारी चीजें आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगी जो आप जल्दी से इंजॉय करना चाह रहे हैं। मैं एक सर फैमिली को जानता हूँ, वो उनकी माँ ने एक छोटी सी, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना घर के एक छोटे से कमरे में छोटी सी बच्चों की चीजों की दुकान खोली थी। जी और आज उसके बच्चे जो है, हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल भी, जी, बहुत वाजबी सी तालीम है, किसी ने मैट्रिक किया है, किसी ने 8 जमात पास किया, आज वो करोड़ों के मालिक है, उनकी अपनी 8-10 दुकानें चल रही। मैनेजमेंट अच्छी होगी ना उनकी। बस वो मेहनत मेहनत भी है, मैनेजमेंट भी है, हाँ जी, सारी बातें हैं सर। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सर वो इंसान को अकल से नहीं मिलता, तकदीर से ही मिलता है ना। अकल पे तो ये सबसे बड़ी बात ये है। 100%। मैं कई इस बार बात के ऐसा साथ, होता है तकदीर कुछ वाली बात के लोग साथ ना, मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, मेहनत देखिए तो हर लेकिन कोई कर लेता है। मेहनत तकदीर के सामने फेल हो जाती है। ऐसे ही है, बिल्कुल और वो कई इसमें बार कोई शक ऐसा नहीं। होता है कुछ लोग मेहनत कम करते हैं लेकिन तकदीर साथ दे जाती है, वो मिट्टी में हाथ बुलंदियों पर डाला पहुंच सोना, और जाते हैं। मिट्टी जी में हाथ डालते हैं तो सोना बन जाती है, और सोने में हाथ डालते तो मिट्टी बन जाती है। तो अल्लाह ताला के ऊपर है। बस इसके अलावा भी बहुत सारी कहावतें मेरे पास हैं जो इसी बिजनेस से रिलेटेड हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी हैं जो कि अभी क्लास के दौरान शेयर नहीं की जा सकती। नहीं नहीं सर, मेरे वैसे भी भाई के टाइम है। मेरे बड़े भाई के हवाले से किसी ने एक दफा एक एग्जांपल दी थी कि ये कहीं से गुजर भी जाए तो वहां से भी इसको कुछ ना कुछ मिल जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह करके उसको मैं मुहज़्ज़ब अंदाज से वो बताता वो हूँ। उसकी उसकी मिसाल सर ये है कि वो बनिए का बेटा गिरता है तो कुछ देख के गिरता है। सही है, ऐसा ही है। ये कराची की मिसाल है। ये कराची की नहीं सर, ये बहुत कदीम मिसाल है, ये तो अच्छा, बर्रे लेकिन सगीर में सिंध में आम है। ज्यादा इस्तेमाल होती होगी, हमारे यहाँ ये वाली मिसाल नहीं इस्तेमाल होती। चलें खैर, ये अलग से वो शुरू हो जाएगा। चलिए सर, पढ़ आगे लेते पढ़ते हैं। हैं। Bunun için şu öneriler de bulunuyor.
इसके लिए वो इन सजेशंस पे एडवाइसेस में मिलता है या ये एडवाइसेस देता है। जी शेयर कर दें जी हमारी वीडियो को, जो लोग देख रहे हैं। सर मेरे पास शेयर ही नहीं हो रहा, मुझे वो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? आप पेज आपने लाइक नहीं ना किया हुआ, आप पेज पे जाएं, लाइक करें उसको। आपका अक्सर शो होता है कि इनवाइट किया हुआ है, लाइक एंड फॉलो नहीं किया। नहीं, रिसेंटली आपका लाइक एंड फॉलो भी आया है। जी आप पेज पे सर। जाएं, एक्का उर्दू पे जाएं और वहां से जाके ऑप्शन आ जाएगा आपको। चलें जी पढ़ें आगे। आपके फेसबुक फ्रेंड बहुत कम है, 89 है मेरा ख्याल है। मैं तो सर इस्तेमाल ही नहीं करता फेसबुक सर, बिल्कुल भी। मुझे अंदाजा है आपके फेसबुक बहुत कम है, लेकिन कर दिया करें, फिर भी शेयर बल्कि करें। मैं फेसबुक क्या सर, मेरे दुनिया में दोस्ती नहीं है, सही एक है। भी नहीं है सर। मैं लोगों से इतने मतलब मैसेजेस भी करता हूँ तो वो जवाब देना भी पसंद नहीं करते। चलें जी आगे पढ़ें। आज मेरा गला खराब हो रहा है, कल मैंने वो स्टडी इन टर्की के ऊपर लाइव सेशन करना है। अल्लाह खैर करे। सर नूर पीछे से चिल्ला रहे, नूर को पढ़ना है। चलें नूर पढ़ें आप। Şurada. İşletmeler insanlar gibi planlı olmalıdır. जी सर ट्रांसलेशन तो भी करनी है? ट्रांसलेट आप लोगों ने करना है, आप लोगों में से आप कर सकती हैं तो करें। नहीं सर कुछ और ही कर ले। चलें करें जी, कौन ट्रांसलेट करेगा? कोई भी नहीं कर रहा? क्या कहेंगे? मैनेजमेंट इंसानlar gibi planlı olmalıdır। जो बिजनेस वाले या मैनेजमेंट वाले लोग हैं उनकी तरह प्लानिंग वाला होना चाहिए। आगे Şirketler için her zaman değişim şartıdır. Şarttır. कंपनीज शिरकतदारी, के लिए हर वक्त डिफरेंसेस वो बदलाव की शर्तें होती हैं। हाँ कंपनी के İşimizde, लिए, कंपनी के लिए शिरकत, कंपनीज के लिए हर वक्त तब्दीली शर्त है। आगे işimize odaklanmamız gerekir. हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए, करना जरूरी है, हमारा अपने काम पे फोकस करना जरूरी है। आगे Şirketlerin iflas etmelerinin ana nedeni ne kar ne de müşteri kaybıdır. करें आप अमीर जहां, मेरा जरा गला थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, आप सर करें। इफ्लास का मीनिंग क्या होगा? इफलास एथमेलेरिन का मतलब है बैंक करप्ट होना। दिवालिया होना मतलब। हम्म। कंपनीज के दिवालिया होने को होने की सबसे अ, मेन वजह, होने की सबसे मेन वजह कार कार पैसा, यहाँ पे प्रॉफिट के मीनिंग में, ने कार ने दी प्रॉफिट, मुश्तरी का बेदर, ना पैसा और ना ही जो कस्टमर का कस्टमर्स होते गायब हैं, होना है, उनका गायब कस्टमर्स होना का है। गायब होना होता है। हम्म Şirketlerin हम्म iflas etmelerinin tek sebebi paralarını iyi yönetmemeleridir. कंपनीज की कम बैंक करप्सी की सिर्फ एक वजह है, पैसे का सही सही मैनेज ना करना। मैनेजमेंट। Büyük şirketlerin en önemli özelliklerden birisi ahlak değerlerine bağlı kalmalılardır. जी बड़ी कंपनीज की सबसे अहमियत वाली खुसूसियात में से एक अखलाक देर ले रही बहाली इखलाकी इक़दार के साथ कनेक्टेड होना इखलाकी है, जुड़ा इक़दार रहना के है। साथ कनेक्टेड होना होता है। Şirketlerin işçilerinin haklarını vermesi ve yasalara uymaları gerekmektedir. कंपनीज की जो वर्कर्स के हुकूक हैं, हक हैं, उनके देने को और
सर इसका मीनिंग क्या होगा? यस लारा ओइमा लारा। यसा लारे उइमा लारे गेरेक मेक्ते, यानी कानून की पाबंदी करना, उसको फॉलो करना, उसके साथ हम आहंगी करना जरूरी है। İş adamı bilgili olmak zorundadır. बिजनेसमैन के ये बिल्कुल नॉलेज होना, नॉलेजेबल होना, हाँ, नॉलेजेबल होना जरूरी है। नॉलेजेबल होना जरूरी है। Sabırsızlık insanların en büyük problemidir. बेसब्रा होना जो है वो बेसब्री इंसान का करें की करें सबसे आप। बड़ी प्रॉब्लम होती है। जी आगे। Herkes kısa zamanda zengin olmak istiyor. हर कोई कम वक्त में अमीर होना चाहता है। Bambu tohumunu ekersiniz 5 yıl boyunca sularsınız ve hiç filiz vermez. 5 yıl toprak altında büyür. जी सर इसको आप ट्रांसलेट कर दीजिए। जो बाम्बू होता है ना, बाम्बू किसको बोलते हैं? बांस को। वो उसका बीज बांस। आप डालते हैं, 5 साल आप पूरे 5 साल पानी देते हैं और उसमें से कोई भी छोटा जिसको कहते हैं पौधा वो भी नहीं निकलता। 5 साल वो जमीन के नीचे बड़ा होता है। 5 सालों के बाद बेशिलिन सुनुंदा यिर्मी येदी मेत्रे फिलिस वेरिर, 5 साल के आखिर पर 27 मीटर का एक पौधा वो देता है। Büyük hedefler için sabırlı olmak gerekir. बड़े हदाफ के लिए, बड़े जो हदफ होते हैं आपके, उनके लिए सब्र वाला होना जरूरी है। ठीक है जी, आगे चलें। चलें जी, Vahap Küçük LCY2'den önce neler yaptı? क्या कहेंगे? Bir tekstil atölyesi işletmeyi başladılar. Küçük kardeşler ilk önce çeşitli firmalar fason üretim yaptılar. यहाँ तक जवाब बनेगा, उसके बाद उन्होंने LCY की खरीद ली। बशारन आल्थ अनाहतार नेदिर, वो यहाँ पे, यहाँ से लिखना आसान होगा क्योंकि नीचे ज्यादा लंबा है। ठीक है, यहाँ तक ये वाले हमारे जवाब बनेंगे। उसके बाद बाम्बू आज नस्ल ये तिशिर, ये अभी अभी हमने पढ़ा है आखिरी लाइन में कि यहाँ से लेके यहाँ तक। Şirketlerin uzun yaşamasının sebebi nedir? yaşamasının, हाँ जी, क्या कह सकते हैं? ज्यादा लंबी देर तक चलने वाली क्या हो सकती है? सबर ओलमक। वैसे मेरा ख्याल है वो यशामा से कहना चाह रहे होंगे। उस सूरत में सबर सजलिक जो है वो उनके लिए हो सकता है, और अगर यशामा से करने के लिए तो फिर यही कहना चाहिए कि सबर ले ओलमक। यशामा मासे के लिए सबर सजलिक और यशा मासे के लिए सबर ले। जी अब आगे बारी हमारी, टाइम थोड़ा है, कोशिश कीजिएगा कि ये खत्म हो। जवाब बता दो, खाली जवाब बता दें। चिकिस गिदिश। एग्जिट डोर कहाँ पे है? चिकिस खान तुर्की गिदिश तारीमी वैली देल। तुर्की जाने की मेरी तारीख अभी कंफर्म नहीं है। अलिश व सतिश। गोल्ड की खरीद और फरोख्त की कीमतें आप बता सकते हैं क्या? गुरुश। जी अच्छा, यहाँ पे हाँ, बहुत ज्यादा धुंध की वजह से जो नजर की हद है वो बहुत कम हो गई है, देखने की, यानी कितना कम नजर आना हमें शुरू हो गया। क्या आएगा सर? गोरुश आएगा यहाँ पे? गोरुश, गोरुश जी गोरुश। सर इस पे मैंने अभी इस पे कुछ थोड़े से अल्फाज डाले, मैंने जो देखे, मेरी नजरों से गुजरे हैं वो जी। सेनिन
Gidişine çok üzüldüm. हाँ गिदिशी ने लगाना पड़ेगा। तुम्हारे जाने पे हम बहुत अफसरदा हुए हैं। Yürüyüş yapmaktan हाँ वॉक करने से मुझे Yürüyüş होगा। yürüyüş Yürüyüş है। yapmaktan. वॉक करने से मुझे खुशी हासिल होती है। Bakışları उसका देखने का अंदाज बहुत सख्त है। बकिश के साथ kalkış क्या आएगा? बकिश ही होगा ना? हाँ बकश, bakışları ना çok उसका बकश लेरी भी कह सकते हैं, खाली बकश। अच्छा जी kalkış मेरे पास काल्किश। कुछ और जहाज के टेक ऑफ का टाइम चेंज हो गया है क्या? bu yemeği pişme फिश। pişme पिश में के आगे सूर्य सी हो तो देखिएगा इस खाने के पकने का टाइम 30 मिनट है, का दुरानिया 30 मिनट है। फिश में होगा सर? हाँ जी पिश में। क्यों? olmanız यहाँ पे वो इसके सर उस ग्रामर से रिलेटेड नहीं है जो हमने दर्स किताब में पढ़ी है, ये उससे हटके होगी। आगे olmanız ve beni dinlemeni olmanızı, olmanızı ve beni dinlemenizi हाँ istiyorum. थोड़ा सा आपका खामोशी करना और मेरा सुनना मैं चाहती हूँ, यानी आप थोड़ा खामोश हो जाएं और मुझे सुने। आगे İstanbul'da yaşamaya alıştım. इस्तांबुल में रहने की मुझे आदत हो गई है। Anlayışın için sağ समझ olun. के लिए आपका शुक्रिया, सलामत रहें। Gelmeme kızıyorum. Annem akşamları eve geç gelmemi, हाँ Gelmeme मेरी वालदा शाम में मेरे लेट आने पर गुस्सा आती हैं। vermenize आपके जवाब देने के इंतजार में हूँ मैं। doktor olmam मेरी वालदा मेरे डॉक्टर होना चाहती है, मेरा डॉक्टर बनना चाहती है। ऑलमोस्ट सर? जी ओल ऑलमोस्ट मामा, ओल मामा मेरे ये कौन सी डॉक्टर होना। तो यहाँ अलग 2 ग्रामर चल रही है इसके अंदर मैं सर। वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये नीचे वाले जो इस तरह से स्टार्ट हुए ना, ये इसी ग्रामर जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी है उससे रेलेवेंट नहीं है, ये इससे पिछले सेक्शन में पढ़ी है वो है। सर जी नेक्स्ट मैं करूं? 2 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट में Aşağıdaki हो जाएगा ये। boşlukları uygun bukleri dolduralım. Without translation पढ़ दूं या translation के साथ? मेरा ख्याल है कि इसको fill कर लेना। अगली दफा कर लेंगे इसको, क्या चलो ख्याल है? जी सर अगली दफा कभी करें। 1-2 मिनट में हो नहीं पाएगा, या तो हम इसको पूरा जी। करें, ट्रांसलेट करेंगी अमीर जहां? जी सर। करें, इसको पूरा कर लें, कोई बात नहीं, 2-4 मिनट ऊपर लग जाएंगे, कर Ben लें। Sara, मैं सरा हूँ Şimdi havalananındayım. मैं एयरपोर्ट पर हूँ. Biraz sonra uçağa binip İstanbul'a gideceğim. थोड़ा बाद में बाय प्लेन पर सवार होकर इस्तांबुल जाऊंगी. Ben İstanbul Üniversite Sinde okuyorum. मैं İstanbul की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ. Yaz tatili için ülkeme geldim. गर्मियों की छुट्टियों में आई थी. Şimdi tekrar İstanbul'a अपने dönüyorum. मुल्क आई अब थी। दोबारा इस्तांबुल जा रही हूँ. अपने मुल्क आई थी. अब दोबारा इस्तांबुल जा रही हूँ. Tatilim çok güzel geçti. छुट्टी ये बहुत आप अच्छी लोगों में गुजरी. से कैप्शन कौन आइले इनेबल करता है, और ये कहाँ से करते हो आप लोग? अभी किसी ने जी किसी ने नहीं किया होगा, आपके पास जोम से तो नहीं आया? नहीं मैंने Ailemle ve लिखा हुआ है, अ arkadaşlar पार्टिसिपेंट हैज enabled क्लोज कैप्शनिंग, हु कैन सी दिस ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्डिंग ऑन। जी पढ़ें आप। ailemle ve arkadaşlarımla beraber çok eğlendik. फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत एंजॉय किया. हमने एंजॉय किया. Denize gezmek geç saatlere kadar uyumak bana çok iyi geldi. समुद्र पर गए, वहां घूमे या सैर की, गुजरे हुए वक्त की तरह uyumak, घंटों तक सोए
Bana çok iyi geldi. मुझे बहुत मेरा बहुत अच्छा हुआ था, आया था। क्या होगा सर ये? मेरे लिए Bana बहुत çok अच्छा iyi हुआ। geldi. मेरे लिए मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ. Ailem benim İstanbul'a dönüşüme üzüldüm. मेरी फैमिली मेरे इस्तांबुल वापस जाने से अफसरदा थी. Ben de biraz üzüldüm ama okulumu bitirmek için dönmem gerekli. मैं भी थोड़ा अफसरदा थी, लेकिन पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए वापस जाना ज़रूरी है. İstanbul'daki arkadaşlarıma da özledim. इस्तांबुल वाले मेरे फ्रेंड्स मुझे मिस कर रहे थे. Onlar çok नहीं, iyi ve बना उजलेदी özledim. किधर है भला? मैं अभी उस तरह नहीं, आप İstanbul'daki मैंने उनको मिस मैंने मैं उनको उनको मिस किया. मैं जी, उनसे उदास मैं हो उनको गया था। वो मेरे से Onlar उदास çok नहीं, मैं उनसे हो गया था। मैं उनसे उदास हूँ. Onlar çok iyi ve yardımsever insanlar. वो बहुत अच्छे और मददगार इंसान हैं. Onlarla beraber olmaya çok seviyorum. onlarla उनके साथ होते हुए बहुत इकट्ठा होने उनके को मैं साथ बहुत होने को पसंद, बहुत पसंद कर ऐसे उनके ही। साथ होने को मैं बहुत उजान कालकश साथे यखलाशियोर प्लेन का जो उड़ने का वक्त है वो करीब हो रहा है. Çıkış işlemlerime yapıp uçağa gitmeliyim. Exit मेरे वर्क्स करके प्लेन्स में दाखिल होना चाहिए. प्रोसेस एग्जिट करके के प्लेन में प्रोसेस दाखिल होना करके चाहिए. जहाज की तरफ मुझे जाना चाहिए। जहाज की तरफ मुझे जाना चाहिए. इस्तांबुल'da görüşürüz. इस्तांबुल में मिलते हैं। मिलते हैं. जी, अगली दफा जे बोलूमो ओकुमा से स्टार्ट करेंगे दर्स किताब के। इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज.